Hi, this is NSG, and we are continuing with ancient history, Lucent GK, religious movement. स्टार्ट कब से होता है 600 टू 400 BC। तो वेरियस रिलीजियस मूवमेंट बुद्धिज्म जैसे जैनिज्म ये ग्रू करते हैं, बॉर्न होते हैं इन पोस्ट वैदिक पीरियड नोन एज पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन और द एज ऑफ बुद्धा। Cause of religious movement, the Vedic philosophy had lost its original purity, became more of rituals scenes rather than philosophical part. Intrinsic value were excluded and extrinsic part were more visible कि रिचुअल फॉलो कर दो काम हो गया। इनहेरिटेंस जो होता है कि कोई भी रिचुअल के पीछे जो फिलोसफी होता है उनको लोग इग्नोर करना चालू कर दिए, जिनकी वजह से ये रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होता है। द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड degenerated into superstitions, as I was saying, dogmas and rituals. ये आगे फ्रंट पे और फिलोसफी बिकेम बैकग्राउंड और बैक फ्रंट पे आ चुके थे। द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रिय reacted against the Brahminical domination. The introduction of new agricultural economy in eastern India, the desire of Vaishya to improve their social position with the increase in their economic position due to the growth of trade, and Buddha's life, Gautam Buddha, founder of Buddhism, born in 563, 563, 56 or half 3, widely accepted, and on the Vaisakha Purnima day of Lumbini Vana, Rumnidin script, Nepal, in Shakya clan. His father Suddhodana was the Republican of King of Kapilavastu. Important mother Mahamaya was the prince of Kolia Republic. After his mother's early death, he was brought up by his stepmother and aunt Maha Prajapati Gautami, the first nun to be included in Buddha Mutt, I would say. His father married him at an early age to Yasodhara, princess of Sakya dynasty, from whom he had a son Rahul. Four sights, an old man, diseased person, dead body, and aesthetic proved to be a turning point in his career. At the age of 29, he renounced home. This was his Mahavinish तो यहाँ देखना है निस कर्मणा, great going forth and became a wandering ascetic. His first teacher was Alara Kalama, Sankhya philosophy, from whom he learnt the technique of meditation. His next teacher was Udraka Ramaputra. तो ये आ सकता है who were the teacher of Buddha, जो कि लोग जनरली रिमेम्बर नहीं करते, तो ये दो बार मैं बोल देता हूँ, अलारा कलामा एंड उद्रका रामपुत्रा. At the age of 35, under the people tree Uruvela, Bodh Gaya, on the bank of river Niranjana, modern name Falgu, he attained nirvana, enlightenment, after 49 days of continuous meditation. Now he was fully enlightened Buddha or Tathagat. ये यूपीएससी में भी 2024 का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ बुद्ध. तो साक्य मुनि, शाक्य क्लैन कहते हैं, साक्य मुनि एंड तथागत, these were the two names with बुद्धा. बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon इन सारनाथ. मैं इसके बाद फाइन आर्ट्स का एनसीईआरटी का भी कवर करूंगा, तो वहां पे ये सब जब रिकनेक्ट होगा तो दैट विल मेक a complete holistic picture of this topic and will greatly help in our prelims exam as well as mains. Buddha delivered his first sermon at Sarnath Deer Park for his 5 disciples, known as Dharma Chakra Parivartan or turning of the wheel of the law. Age of 8483 BC, कुशीनगर. और यहाँ देखिए, यहाँ है पर निर्वना, पर निसी घर से निकलना, पर बाहर जैसे जाते हैं तो पर निर्वना, फाइनल ब्लोइंग आउट. कंटका बुद्ध हॉर्स, चन्ना बुद्ध चैरियटरी, देवदत्त बुद्ध cousin, Sujata the farmer's daughter who gave him rice milk at Bodh Gaya, and other names of Buddha. Gautama, clan name, Siddhartha, childhood name, Sakyamuni. See.
ये लोग कैसे इग्नोर करते हैं, देखिए छोटा-छोटा पॉइंट है जो दिखता नहीं है और यहाँ से यूपीएससी फ्रेम करता है। लोग बोलते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, नहीं आता है, बस पर लोग लाइन बाय लाइन और डीपली खुद से रीड करते नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा शाक्य, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत किया हूँ और मुझे वो उस समय विजिबल नहीं था। और तथागत, दीज आर द टू नेम्स ऑफ बुद्धा, अदर नेम्स ऑफ बुद्धा। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, चत्वारि आर्य सत्यानि, फोर नोबल ट्रुथ्स। It is the essence of Buddhism. Life is full of sorrow, dukkha, shavam dukkham. Their cause of sorrow, dukkha samudaya. Dwadas nidan paritya samupupada. Sorrow can be stopped. Dukh nirodha nirvana. There is a path leading to the cessation of sorrow. Dukh nirodhana से ये हम लोग निकल सकते हैं। ग्रामीणी अष्टांगिका मार्ग। Note: Pratyaya Samutpada is also known as Hetuvada, theory of cause effect. Hetuvada and Kashanbhanga-vada, theory of momentaries and impermanence. Desire is the root cause of sorrow. The ultimate aim of life is to attain nirvana, the eternal state of peace and bliss, which means liberation from the cycle of birth and death. Ashtanga Marg, eightfold path: right observation, right determination, right speech, right action, right livelihood, right exercise, right memory, right meditation. Madhya Marg, middle path. Aristotle also talked about this middle path. Men should avoid both extremes, that is, the life of comfort and luxury and life of severe ascetism. Middle path, middle class. Okay, both are rhyming. यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनता है, तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूँ, वेरी इजी टू रिमेम्बर। सबसे पहले यहाँ पे है एम एस एम बी और यहाँ हम लोग रखेंगे आर पी पी के और यहाँ हम लोग रखेंगे ए के। तो अगर ये याद हो गया तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग इजीली सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं हम लोग इस पे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483, राजगीर, महाकश्यप, अजातशत्रु, अरियन डायनेस्टी, कंपाइलेशन ऑफ सूत पिटक एंड विनय पिटक बाय आनंद एंड उपाली रेस्पेक्टिवली। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383, वैशाली, सब शबकामी, कालशोक, शिशुनाग डायनेस्टी का। द मॉन्क्स ऑफ द वैशाली वांटेड सम चेंजेस इन राइट्स तो सिशिज्म इनटू थेरावादीन एंड महासंघिका। डिवीजन नहीं होता है, उसी में कुछ आ जाता है, थेरावादीन महासंघिका बनते हैं। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 2250 में बीसी में आता है, जहां पाटलिपुत्र में होता है, और मोगली पुत्र तीसा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका। कंपाइलेशन ऑफ अधिधम्म पिटक, डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ही अशोक के बेटा और बेटी को साउथ श्रीलंका भेजते हैं, दशरथ, और बेटी का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो यहीं पे डिसाइड किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, अधिधम्म पिटक का भी यहाँ पे कंपाइलेशन होता है, और ये दोनों तो पहले ही हो जाता है बुद्ध के फर्स्ट इसमें, विनय पिटक, उपाली, आनंद उपाली। और इसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन, और यहाँ बुद्ध का टीचिंग यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 एडी, कुंडलावन कश्मीर। चेयरमैन है अशोक घोष एंड कनिष्क, कुशाण डायनेस्टी। कंपाइलेशन ऑफ महाशास्त्र, संस्कृत कमेंट ऑन त्रिपिटक एंड द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिवीजन आ रहा है, डिवीजन ऑफ, तो डिवाइड इनटू टू वाज द फोर्थ काउंसिल। और अभी 71 बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में नहीं हुआ, तो ये था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट वाज टू बी हेल्ड इन कश्मीर इन कुंडलवान बाई कनिष्क। और ये तीनों देखिए कहाँ है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार के मैप पे यहाँ से पहले स्टार्ट होता है। राजगीर, नालंदा राजगीर, देन वैशाली गंगा के ऊपर, और इधर पाटलिपुत्र फिर इस साइड। सो देख सकते हैं बुद्धिज्म का कैसे लास्ट फोर्थ काउंसिल में कैसे पैन इंडिया एक्सपेंशन दिखने को मिलता है।
नाउ पाली टेक्स्ट्स, यहाँ से यूपीएससी फेवरेट स्टार्ट होता है। अब यहाँ यूपीएससी जाएंगे और स्टेट पीसीएस ऊपर रहते हैं। त्रिपिटक, Pitak literally means basket, and it was called so because the original texts were written on palm leaves and kept in baskets. Sutta Pitak, Buddha saying, बुद्ध का टीचिंग जैसे मैंने बोला, एंड विनय पिटक मोनास्टिक कोड, कैसे रहना है कैसे करना है कुछ भी। अधिधम्म पिटक रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा। अधिधम्म पिटक कंप्राइज ऑफ दीघा निकाया, मजहिम निकाया, संगुता निकाया, अंगुत्र निकाया, कुदक कुसुदरक निकाया। Now Milinda Pano, question of Milinda, a dialogue between Milinda and identical with the Indo-Greek ruler Meander and Buddhist saint Nagasena. Deepavansam and Mahavansam are the great chronicles of Sri Lanka. So Deepavansam and Mahavansam are the Buddhist texts but are of Sri Lanka. तो संस्कृत टेक्स्ट से आते हैं बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता संस्कृत में लिखा गया है। सौंद्रनंदा, सूत्रलंकर, सरीपुत्र, पराकरण एंड वज्र सांची। वज्र सूची अशोक घोष ने लिखा है। महाविभाषा शास्त्र वासुमित्र, विशुद्धिमागा सुमंगला सानी बुद्ध घोष एंड मध्यमिका करिका एंड प्रजनपारिता करिका नागार्जुन। तो आई थिंक ये जो लाइन है ये आई थिंक इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे लोग एनर्जी नहीं डालते और यहीं से क्वेश्चन अपीयर होता है एग्जाम में। फिर से आते हैं बुद्ध चरिता। सौंदरनंदा, सूत्रलांकर, सरीपुत्र पराकरण एंड वज्र सूची, दीज ऑल आर क्रेडिटेड टू अशोक घोष। अब आते हैं महाविभाषा शास्त्र, जो कि वासुमित्र ने लिखा। अब है विशुद्धि मार्ग, अतक कथेन सुमंगलवासिनी, ये लिखे हैं बुद्ध घोष। और यहाँ है मध्यमिका करिका एंड प्रजनपरमिता करिका। तो करिका नागार्जुन। मैं यहाँ टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि ये अगर 2-3 बार अगर हम लोग के माइंड में जाता है तो एग्जाम में अपने आप क्लिक कर जाता है। तो सबसे पहले देखिए संस्कृत कौन कौन रिलेटेड है। तो आते हैं सबसे पहले अश्वघोष, देन वी हैव वासुमित्रा, देन वी हैव बुद्ध घोष एंड वी हैव नागार्जुन। तो नागार्जुन से है करिका, करिका नागार्जुन। ओके, करिका नागार्जुन एंड बुद्ध चरिता और वज्र सूची, ये सब अशोक घोष के पास गया। महाव्यास वासुमित्र एंड मध्यमिका करिका, ये नागार्जुन। अब आते हैं हीनयान, the lesser vehicle. Its followers believed in the original teaching of Buddha. They sought individual salvation through self-discipline and meditation. They did not believe in idol worship. They favored Pali language. It is known as Southern Buddhist religion because it is prevailed in south of India, the Sri Lanka, Burma, Myanmar, Siam, Thailand, and Java, etc. There were 2 subsects of Heenan, Vaivashika and Sautantrika. तो हीनयान का सबसेक्ट पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। I think 2019 CSE and 2020 both year say theme were same and the question were repeated. Vaiseshika and Sautantrika are the sects of Heenan. Now Mahayana, the greater vehicle, the followers believed to be heavenly lineage of Buddha. They sought to solve salvation of all through her the grace of help of Buddha and Bodhisattva. Bodhisattva कौन है? Dalai Lama concept. They believed in idol worship. They favored Sanskrit language. It is known as Northern Buddhist religion because it prevailed in the north of India, China, Korea, Japan, etc. There were 2 subsects of Mahayana, Madhyamika and Sunyavada, the founder of Nagarjuna, and Yogachar and Vajnavada, the founder of Maitreyanath and his disciple Ashnag। तो यहाँ ये जो डीप
क्वेश्चन है, डीप कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ सबसे क्वेश्चन आता है। नाउ वज्रयान, द अदर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, इट फॉलोअर्स द बिलीव दैट सैल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर। अब एक्सट्रीम लेवल पे इसको लेके जा चुके हैं लोग। अब इनके अंदर पहले भगवान दिखे, अब भगवान के बाद इनके अंदर इन्हें अब मैजिकल पावर भी अपीयर हो रहा है, which they called Vajra. The chief divinities of these new sects were the Taras. It became popular in Eastern India, particularly Bengal and Bihar. यही पाला डायनेस्टी से ये जाता है आपको तिब्बत, वज्रयान ट्रेडिशन। नाउ बोधिसत्व क्या है? तो वज्रपानी, लाइक इंद्रा, he holds a thunderbolt, a foe of sin and evil. Avlokteshwar, the Lord who looks down, also called Padmapani, the lotus bearer, kind-hearted. Manjusri, he holds a book describing 10 paramitas, spiritual perfection. Maitreya, the future Buddha. Kasitagriha, guardian of purgatories. Amitava, Amityasura, Buddha of heaven. तो ये आ चुका है शायद, मैत्रेय द फ्यूचर बुद्धा, और अवलोकेश्वरा द लुक डाउन, लॉर्ड हु लुक्स डाउन, आल्सो कॉल्ड पद्मपानी द लोटस बियरर, काइंड हार्टेड। ये एग्जाम में आ चुका है, ये दिस वन एंड दिस मैत्रेय द फ्यूचर बुद्धा। आई थिंक सीएससी, मोस्टली सीएससी फेवरेट टॉपिक ये है। नाउ सेक्रेड श्राइन्स, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर वर द फोर प्रिंसिपल इवेंट of Buddha life, namely birth, enlightenment, first sermon, and death took place. There were four places: Sarvasti, Rajgriha, Vaisali, and Shanksaya. These 8 places have long been considered as the 8 holy places. Other center of Buddhism in ancient India: Amravati and Nagarjunkonda in Andhra Pradesh, Nalanda in Bihar, Junagadh and Ballavi in Gujarat, Sanchi and Bharut in MP, Ajanta Ellora in Maharashtra, Dhaulagiri in Odisha, Kannauj, Kaushambi and Mathura in UP, and Ja- Jagadala and Shompuri in West Bengal. तो यहाँ से भी सीएससी में एग्जाम आया है, व्हाट आर द कंसिडर्ड द बुद्धिस्ट सेंटर। तो ये धौलागिरी उड़ीसा का है, भरूच एमपी, अजंता इलोरा महाराष्ट्र, कन्नौज, कौशंबी एंड मथुरा यूपी, एंड जागाडाला एंड सोमपुरी इन वेस्ट बंगाल। तो ये मैच करने के लिए दे देता है कि कौन सा एरिया कहाँ से रिलेटेड है। तो अमरवती और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, जूनागढ़ एंड वल्लभी इन गुजरात, सांची एंड भरूच इन एमपी, अजंता एलोरा महाराष्ट्र, धौलागिरी एंड उड़ीसा, कन्नौज, कौशंबी, मथुरा इन यूपी। और ये तो यहाँ हम लोग ये याद रखना है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे लोग का फोकस कम जाता है, वेस्ट बंगाल भी। Now Buddhist architecture was developed into 3 forms: stup, relics of Buddha or some prominent Buddhist monks are preserved; chaitya, जहाँ prayer hall है; vihara, residence. Stup, relics of Buddha or some prominent Buddhist monks are preserved; chaitya, prayer hall; vihara, residence. Now नालंदा बिहार है, फाउंडर कौन है? कुमारगुप्त। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उदंतपुरी आ चुका है, गोपाला। दीज आर बीपीएससी क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन। कौन है? उदंतपुरी, गोपाला। विक्रमशिला, धर्मपाल, सोमपुरी, धर्मपाल, जगाडाल जो बंगाल में अभी बात के बुद्धिस्ट है, रामपाल, और बल्लाभी गुजरात, भद्रका। Now royal patrons of Buddhism: Bimbisar and Ajatasattu, Magadhan ruler; Prasenjit Kosala, Udyan Vatsa ruler; Praditya Avanti ruler; Asoka and Dasratha, Mauryan ruler; Milinda Meander Indo-Greek; Kanishk Kushan; हर्षवर्धन एंड गोपाला, धर्मपाल, रामपाल। तो रामपाल कहाँ पे है? जगादाल एंड बल्लावी, नहीं ओनली जगादल, क्योंकि पाला डायनेस्टी बंगाल में कंसंट्रेटेड था, तो जगादल वेस्ट बंगाल, ये याद रखना है, क्योंकि ये तो याद रहता है। सोमपुरी, विक्रमशिला, उदंतपुरी तो सबको याद है। सोमपुरी जो कि नॉर्थ बंगाल में धर्मपाल ने किया, और जगदल जगदल ये रामपाल किया, और बल्लाभी गुजरात में भद्रका। Now the note, Asoka, the greatest patron of Buddhism, called Bulaya, three Buddhist council and saint mission comprising of his son
Mahinder and his daughter Sanghamitra to Sri Lanka. इसी के मैं बारे में बोल रहा था, Mahinder and Sanghamitra. Tanishq called forth Buddhist council and sent mission to China, Korea, Japan, and Palas of Bengal and Bihar were last great patron of Buddhism. So here we are done with Buddha plus religious movement, and we will continue with Jainism in next video. Thank you.